कुछ सेक्शन. Okay. So I'll be just quickly taking up section 93 first. आज हमने प्राइवेट डिफेंस से शुरू करना है, बट 93, 94, 95 लास्ट क्लास में बहुत क्विकली लिए थे, तो उसको एक बारी मैं आपको रीडू करवा रही हूँ बेटा. सेक्शन 93 कहता है कम्युनिकेशन मेड इन गुड फेथ. सो ये सिर्फ कम्युनिकेशन की बात कर रहा है. अगर आपने कम्युनिकेट किया है कुछ भी चीज इन गुड फेथ और उसकी वजह से कोई ऐसा एक्ट हुआ है विच हैज basically resulted into some kind of an offense, but that उस केस में जो कम्युनिकेशन आपने किया था, दैट इफ यू हैड डन इट विद गुड फेथ एंड फॉर द बेनिफिट ऑफ दैट पर्सन, तो वहां पे आपको डिफेंस मिलेगा ऑफ सेक्शन 93. So it says no communication made in good faith is an offense by reason of any harm to the person. Now this harm can also extend to the harm of causing death. So any harm, can you see, to the person to whom it is made, if it is made for the benefit of the person. इसकी illustration भी आप देखें बेटा. A surgeon in good faith communicates to a patient his opinion that he cannot live. The patient dies in consequence of the shock. A has committed no offense, though he knew it to be likely that the communication might cause. Underline knew. नॉलेज है उसको, उसको पता है कि यस उस चीज से क्या हो सकता है, उसकी डेथ हो सकती है, डॉक्टर को पता है. उसके बावजूद भी अगर वो कम्युनिकेट करता है, इन दैट केस यस दिस डिफेंस ऑफ section 93 is given. Similarly, if there is a doctor A who informs B, who is engaged to C. B and C are engaged and they are soon to get married. But A जो है वो C की let's say mental या फिर physical health के बारे में B को बता देता है. Now if because of that communication which the doctor has made to B और C का जो शादी है वो टूट जाती है, उस केस में is the doctor liable? No. Why? Because he communicated in good faith and for the benefit of Miss B. Right? So ऐसे कुछ examples यहाँ से आपको आ सकते हैं. Then if we talk about your section 94, 94 जो है act to which a person is compelled by threats. Compelled by threats को आप underline करके लिख सकते हो duress. Duress means compulsion. Compelled by threats. So यहाँ पे वो कहता है except murder and offenses against the state. So murder and offenses against, आप किसी से खून नहीं करवा सकते और किसी से ऑफेंस अगेंस्ट द स्टेट नहीं करवा सकते हो अंडर ड्यूरेस, अंडर कंपल्शन. अगर आपने किसी से खून करवाया है या फिर एक ऐसा ऑफेंस करवाया है जो कि एक ऑफेंस है अगेंस्ट द स्टेट बट अंडर कंपल्शन, उसमें आपको ये डिफेंस 94 का नहीं मिलेगा. आपको कंप्लीट लाइबिलिटी होगी फॉर दैट एक्ट which has resulted into an offense against the state. Even though it was not your own act, it was done under compulsion, फिर भी आपकी पूरी liability होगी. तो ये जो section है, ये जो defense है, ये यहाँ से शुरू होता है. It says nothing is an offense which is done by a person who is compelled to do it by threats. किसी से आपने कोई काम करवाया है, compel किया है उसको under threats, which at the time of doing it, always remember under Indian Penal Code the liability is fixed at the time of doing the offense. आपका क्या स्थिति थी, क्या state of mind था. Reasonably cause the apprehension that instant death to that person. Instant death, not remote. I will come and kill you if you don't do this. Then the benefit of this section is not given. It should be a threat of instant death. It should be a threat of instant death. Instant death of that person will otherwise be the consequence, provided that the person doing the act did not of his own accord or from a reasonable apprehension of harm to himself short of instant death place himself in the situation by which he became subject to such constraint. So basically जिस इंसान ने वो काम किया है under compulsion, provided that उसने वो काम खुद को अपने आप को उस position में रखकर नहीं किया. He has himself put him in that situation where he is under a threat. So in case he does that, in that case section 94 का benefit नहीं मिलता है. ठीक है? All right. Explanation 1 and explanation 2. These are two explanation which is again elaborating. Explanation का काम क्या होता है? Explanation का काम है जो आपको ऊपर दिया गया provision है उसको आगे explain करना. ठीक है? तो explanation 1 कहता है a person
who of his own accord or by reason of a threat of being beaten joins a gang of dacoits knowing their character is not entitled to the benefit of this exception. So अगर आप खुद से जाके गैंग ऑफ dacoits को ज्वाइन कर लेते हो और फिर आप कुछ ऐसा एक्ट करते हो जो कि एक ऑफेंस है, उसमें आपको ये डिफेंस नहीं मिल सकता है 94. You will be liable for the complete offense. Exception on the ground of his having been compelled by his associates to do anything that is an offense by law. Explanation 2, a person seized by a gang, or seized matlab he's been captured by the gang of dacoits and forced by threat of instant death. Repeatedly, I'm saying it is instant death to do a thing which is an offense by law. For example, a smith compelled to take his tools and to force the door of a house for the dacoits to enter and plunder it is entitled to the benefit of this exception. घर का एक चौकीदार है, चौकीदार को आपने कंपेल किया कि वो क्या करे, वो अपने टूल्स जो है उससे या फिर चाबी का क्या दे दे, अपने जो उसके पास चाबी पड़ी है घर की, उस चाबी से घर का दरवाजा खोल दे ताकि डिकॉइट्स अंदर जा सके. अब जो उसने चाबी से दरवाजा घर का खोल दिया और जिसकी वजह से डिकॉइट्स अंदर गए और उन्होंने घर को लूट लिया, तो उस केस में जो चौकीदार है उसको डिफेंस, उसकी लाइबिलिटी नहीं होगी, उसको सेक्शन 94 का डिफेंस मिलेगा. ठीक है. एक्ट क्लॉज कॉजिंग स्लाइट हार्म. अब ये जो है दिस सेक्शन, दिस इज टॉकिंग अबाउट ट्रिपल एक्ट. Though the act done by you is an offense, it comes under the letter of offense, but still उसको हम क्या करेंगे, offense वो एक ऐसा offense है which is too trivial to take to take cognizance of. cognizance भी नहीं हम कहेंगे, उसका cognizance तो ले लिया, मतलब एक ऐसा एक्ट किया है जो कि एक ऑफेंस है, बट वो ऑफेंस तो है बट इट इज टू ट्रिफल टू बी ट्राइड. सो देयरफॉर वहां पे हम डिफेंस दे देंगे सेक्शन 95 का. आपने बस ट्रिफल्स लॉ डज वहां पे लॉ जो है एक डिफेंस दे देता है इन केस ऑफ ट्रिफल एक्ट्स. इन केस ऑफ ट्रिफल एक्ट्स, नाउ व्हाट आर ट्रिफल एक्ट्स? ट्रिफल एक्ट्स, इट विल डिपेंड अपॉन द lifestyle of a person, the position that he holds, the relationship between the parties, उन सब चीजों के ऊपर वो डिपेंड करेगा. क्योंकि एक जो एक्ट है वो मेरे लिए स्लाइट नहीं हो सकता और दूसरे पर्सन के लिए स्लाइट हो सकता है, right? It depends from society to society, it depends from culture to culture. So all those factors will decide that whether the act is a slight, whether the act which is an offense, is it slight or is it grave? ऑलराइट. इसमें आपका कुछ इंपॉर्टेंट केसेस भी हैं, ठीक है, बट दैट इज फॉर सब्जेक्टिव. बट आप अभी के लिए 95 के लिए सिर्फ ट्रिपल एक्ट्स को याद रख सकते हैं. Okay, now we start from private defense. 96 just a declaratory section that you can read. 97 जो है बेटा, ये आपका बताता है कि जो राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस है वो दो चीजों के लिए अवेलेबल है अंडर इंडियन पिनल कोड. आप देखेंगे फर्स्ट वो कहता है राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस इज अवेलेबल फॉर हिज ओन बॉडी एंड द बॉडी ऑफ एनी अदर person against any offense affecting human body. Offenses affecting human body, कौन सा chapter है which is talking about offenses affecting human body? Anybody? 16. तो पूरा चैप्टर 16 के अंदर जितने भी ऑफेंसेस हैं, चैप्टर 16 के अंदर जितने भी ऑफेंसेस हैं, उन सारे ऑफेंसेस के लिए आपको डिफेंस मिलेगा, राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस मिलेगा इन केस ऑफ योर ओन बॉडी एंड अदर्स बॉडी. बट इन केस ऑफ सेकेंडली वो कहता है प्रॉपर्टी वेदर मूवेबल और इमूवेबल, हिमसेल्फ और एनी ऑफ द पर्सन अगेंस्ट ऑफेंस फॉलिंग अंडर द डेफिनेशन ऑफ थेफ्ट. अब जो आपके ऑफेंसेस अगेंस्ट प्रॉपर्टी है वो कौन से चैप्टर में फॉल करते हैं? Offenses against property 17. चैप्टर 17. चैप्टर 17 में आपको पूरा का पूरा चैप्टर 17 में जितने भी आपके ऑफेंसेस है सब में राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस अवेलेबल नहीं है. सब में राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस अवेलेबल नहीं है. सिर्फ और सिर्फ जो आपका ऑफेंसेस अगेंस्ट प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू थेफ्ट, रॉबरी, मिस्चिफ और क्रिमिनल ट्रेसपास, इनके ऊपर आप 1 2 3 4 ऐसे करके आप लिख लो प्लीज. थेफ्ट, रॉबरी, मिस्चिफ, क्रिमिनल ट्रेसपास और इन सबके जो है अटेम्प्ट्स, उन सबके जो है अटेम्प्ट्स भी जो है उन केसेस में आपको राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस मिलेगा. सो आई एम टॉकिंग अबाउट टू थिंग्स. इफ आई जस्ट शेयर, आई एम सेइंग जैसे हम जनरली क्या कहते हैं कि जो राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस है वो अगेंस्ट बॉडी एंड अगेंस्ट प्रॉपर्टी मिलता है. आपने याद रखना है कि जो राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस है वो अगेंस्ट ह्यूमन बॉडी, all the offenses against human body
एंड प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टी में सारे ऑफेंसेस नहीं, नॉट ऑल, नॉट ऑल, ओनली लिमिटेड टू this 1, 2, 3, 4, that is theft, robbery, mischief, criminal trespass, and fifth would be इन सबके attempts, इन सबके attempts, सिर्फ इन ऑफेंसेस। एंड ह्यूमन बॉडी के लिए पूरा का पूरा चैप्टर 16 में जितने भी आपके ऑफेंसेस है सबके लिए आपको राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस अवेलेबल है। एंड फॉर योर सेल्फ एंड अगेंस्ट अदर, अनलाइक इंग्लिश लॉ में इट इज ओनली फॉर योर सेल्फ एंड ओनली टू पीपल who you are related, it is not available against for the right of private defense is not available for the strangers under English law। Then you can just come to सेक्शन 98। सो सेक्शन 97 आपको समझ में आया? सिर्फ आपको वो क्या बता रहा है कि राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस किन किन केसेस में अवेलेबल है। 98 कहता है राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस अगेंस्ट द एक्ट ऑफ अ पर्सन ऑफ एन अनसाउंड माइंड। सिर्फ इसका सेक्शन याद रख सकते हो, यू कैन स्किप ऑल्सो, क्योंकि जो एक इंसान अनसाउंड माइंड का है, एक बच्चा जो 7 साल की कम उम्र का है, एक बच्चा जो 7 से 12 साल की उम्र का है, वो कोई भी एक्ट कर दे वो ऑफेंस नहीं है ना, वो ऑफेंस नहीं है। तो अगर एक एक a person who is insane, if he's coming to hit me, पर वो जो काम कर रहा है, वो जो he's going to hit me, it is not an offense, but जो right of private defense है, it is only available against the offense। सो यहाँ पे ये स्पेशल सेक्शन 98 ये क्लैरिफाई कर रहा है कि इवन इफ द एक्ट डन बाय दी स्पेशल कैटेगरीज ऑफ पीपल इज नॉट एन ऑफेंस, बट इवन देन यू हैव अ राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस अगेंस्ट ऑल ऑफ देम, राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस अगेंस्ट ऑल ऑफ देम। डिड यू अंडरस्टैंड? दैट इज 98। Again, now coming to section 99, very important section 99, it is a controlling section। जब भी अगर आपको मेंस में भी कोई सवाल आता है राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस, यू कैन नॉट स्किप सेक्शन 99। अब आपको याद रखना है सेक्शन 96 डिक्लेरेटरी सेक्शन है, 97 जो है वो कहता है राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस दो जगह में अवेलेबल है, मतलब अगेंस्ट बॉडी एंड ऑल्सो अगेंस्ट प्रॉपर्टी, बट प्रॉपर्टी में लिमिटेड। एंड देन आपका 98 अनसाउंड माइंड। 99 जो है वो कंट्रोलिंग सेक्शन है, वो कहता है कि ठीक है आपके पास राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस है, बट इस राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस है, बट ये एक आपको ब्लैंकेट इम्यूनिटी नहीं दे रहा है कि आप कुछ भी चाहे अपने आप को डिफेंड करने के लिए आप कुछ भी चाहे तो कर सकते हैं, नहीं। जो ये राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस आपको सेक्शन 96 ने जो दिया है, इट इज कंट्रोल्ड बाय सेक्शन 99। उसका कंट्रोलिंग सेक्शन कौन सा है? सेक्शन 99। सो सेक्शन 99 इज वेरी इंपॉर्टेंट। इट कम्स विद 2 एक्सप्लेनेशंस बेटा। ये क्या कहता है कि आपका राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस तभी अवेलेबल है अगर आपके पास कोई भी क्या नहीं है, यू डोंट हैव, यू कैन नॉट टेक रिकोर्स टू पब्लिक अथॉरिटीज। सबसे पहले तो आपको क्या कोशिश करनी चाहिए कि यू टेक रिकोर्स टू पब्लिक अथॉरिटीज। एंड सेकेंडली इट ऑल्सो टॉक्स अबाउट कि राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस जो है इट शुड बी, सबसे पहले मैंने क्या बताया कि अगर आपके पास पब्लिक अथॉरिटीज का राइट है तो आप प्लीज जाके पब्लिक अथॉरिटीज की हेल्प लीजिए, ये नहीं कि आप कानून को अपने हाथ में लीजिए। ठीक है, अगर चोर आपका बैग पकड़ कर ले गया, भाग ले गया, और वहां पे अगर कांस्टेबल खड़ा है या कोई भी पुलिस ऑफिसर खड़ा है, तो आप अगर he is if he knows that the chore has taken your bag, if the thief has taken your bag, then he can process it further। और अगर आपने चोर को पकड़ भी लिया, पकड़ने के बाद जो आपका राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस है वो खत्म हो जाता है। चलो वो तो हम आपके आगे बात करेंगे, कि कब शुरू होता है राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस, कब खत्म होता है। बट 99 में सबसे पहली चीज वो कहता है कि इफ यू हैव टाइम टू टेक रिकोर्स टू पब्लिक अथॉरिटीज, इन दैट केस राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस जो है आपको नहीं मिलेगा, उस केस में आपको राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस नहीं मिलेगा। ठीक है। सेकेंडली जब आप राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस एक्सरसाइज करेंगे, इट शुड बी एक्सरसाइज्ड इन गुड फेथ। एंड यहाँ पे जब भी आप राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस एक्सरसाइज करेंगे, इट शुड बी ओनली, वहां पे कितना फोर्स आपने यूज करना है, मतलब इट इज जस्ट अ डिफेंसिव राइट, यू कैन नॉट एक्सीड दिस राइट। सो पब्लिक अथॉरिटीज एंड ऑल्सो it should not be used, not to be used excessively। एंड तीसरा जो ये बात कर रहा है वो बात कर रहा है विद रिस्पेक्ट टू पब्लिक सर्वेंट्स। पब्लिक सर्वेंट, क्या ये राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस अवेलेबल है विद रिस्पेक्ट टू पब्लिक सर्वेंट्स? ये भी आपको 99 बताएगा। लेट्स सी 99। इट सेज right of private defense against an act which does not reasonably cause the apprehension of death or grievous hurt। underline the first line। okay, so right of, जो पहली लाइन है उसको समझते हैं। जो right of private defense है वो हम कब एक्सरसाइज करते हैं? हम इसको 2 पार्ट्स में कैटेगराइज करेंगे। फर्स्ट पार्ट क्या है? जहां पे देर इज एन एप्रीहेंशन ऑफ डेथ की, एप्रीहेंशन मतलब आप एप्रीहेंड कर रहे हैं कि डेथ हो सकती है। आगे वाला क्या कर रहा है? पिस्टल लेकर आया और उसने क्या किया, उसमें गोली डाली और आपकी तरफ पॉइंट आउट कर रहा है कि आज तो आई एम गोइंग टू शूट यू।
ठीक है, तो देर इज अ रीजनेबल एप्रीहेंशन ऑफ डेथ. सो रीजनेबल एप्रीहेंशन ऑफ डेथ और ग्रीवियस हर्ट. और दूसरा क्या है? रीजनेबल एप्रीहेंशन किस चीज का रीजनेबल एप्रीहेंशन है? नॉट ऑफ डेथ और ग्रीवियस हर्ट बट ऑफ एनी अदर हर्ट. ठीक है, रीजनेबल एप्रीहेंशन नॉट ऑफ मतलब एक्सेप्ट ये जो आपका डेथ और ग्रीवियस है, इसको छोड़कर रीजनेबल एप्रीहेंशन ऑफ एनी अदर हार्म. ठीक है, इस बस आपने इसको समझना है कि अगर तो रीजनेबल एप्रीहेंशन ऑफ डेथ और ग्रीवियस हर्ट है तो आप राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस कितना एक्सरसाइज कर सकते हो? आप राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस एक्सरसाइज कर सकते हो सेक्शन 100 and section 103. I've deviated from 99. I'm going to come back to 99. But you have to understand this कि इसमें आपके सारे sections cover हो जाएंगे. Reasonable apprehension of death और grievous hurt है अगर, तो आपको जो right of private defense है, in case of body it is section 100, in case of property it is section 103. It is section 103. In case of property it is 103. बस प्री के लिए आपने क्या मानना मार्क करना है कि अगर रीजनेबल एप्रीहेंशन है ऑफ डेथ और ग्रीवियस हर्ट इन केस ऑफ बॉडी सेक्शन 100 वहां लिख लो राइट 100, और 103 में लिखो इन केस ऑफ प्रॉपर्टी. ये दो चीजें. ठीक है, तो जहां पे रीजनेबल एप्रीहेंशन ऑफ डेथ और ग्रीवियस हर्ट है तो आपको राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस कितना दिया गया है? राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस टू द एक्सटेंट ऑफ कॉजिंग डेथ. ये आपके दो सेक्शंस हैं, सेक्शन 100 एंड सेक्शन 103. पहली चीज. दूसरी चीज आपने क्या याद रखनी है कि ये जो रीजनेबल एप्रीहेंशन है, ये रीजनेबल एप्रीहेंशन कब स्टार्ट होता है? when does this reasonable apprehension start, or not reasonable apprehension, sorry, when does the right of private defense start and when does the right of private defense end? ये भी हमें पता होना चाहिए. when does the right of private defense start and when does the right of private defense end? सो इसको भी हम दो पार्ट्स में समझेंगे. एक है आपका बॉडी, राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस इन केस ऑफ बॉडी, और दूसरा है राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस इन केस ऑफ प्रॉपर्टी. सो ये हमको क्या देखना है कि राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस कब स्टार्ट हो रहा है और कब एंड हो रहा है, स्टार्ट एंड एंड कब हो रहा है. क्यों ये देखना जरूरी है? अगर आपको कोई अप्लाइड क्वेश्चन आता है उसमें आपको लगेगा कि राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस है, बट इफ इट इज नॉट इन बिटवीन दिस स्टार्टिंग एंड एंडिंग पॉइंट एंड इफ इट इज आफ्टर दिस यू हैव एक्सरसाइज राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस, तो वहां पे आपका राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस खत्म हो गया है. तो इन दैट केस यू विल बी लायबल फॉर द होल ऑफेंस, कंप्लीट ऑफेंस, द डिफेंस इज नॉट गिवन. नाउ बॉडी के लिए हम क्या कहते हैं? राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस विल स्टार्ट एंड एंड. इसके लिए आपके पास सिर्फ एक ही सेक्शन है जहां पे आपको बताया गया है कि राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस कब स्टार्ट होगा और कब एंड होगा. दैट इज सेक्शन 102. ठीक है, तो वो क्या कहता है? वो कहता है जहां पे देर इज अ रीजनेबल एप्रीहेंशन ऑफ डेथ और रीजनेबल एप्रीहेंशन ऑफ फियर, जैसे वो रीजनेबल एप्रीहेंशन स्टार्ट होगा उस टाइम से आपका राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस स्टार्ट होगा. जिस टाइम पे आपका रीजनेबल एप्रीहेंशन एंड होगा उस टाइम पे आपका राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस खत्म होगा. चोर मेरा बैग लेकर भाग गया, वहां से रीजनेबल एप्रीहेंशन स्टार्ट हो गया और मैं चोर के पीछे पीछे भाग रही हूँ, और चोर को अगर मैंने पकड़ लिया और उसने यहाँ पे मेरा बैग पीछे फेंक दिया, बट ये तो हो गया आपका प्रॉपर्टी का. प्रॉपर्टी के लिए हमारे पास सेक्शन जो है दैट इज सेक्शन 105. बट बॉडी के लिए हम क्या करेंगे? अगर एक बंदूक पर्सन मेरे सामने लेकर पॉइंट आउट कर रहा है, वहां से रीजनेबल एप्रीहेंशन स्टार्ट हो गया, तो मैं आगे से डंडा उठा सकती हूँ और उसको मैं मार सकती हूँ. बट अगर वो बंदूक जैसे उसने फेंक दी वहां पे रीजनेबल एप्रीहेंशन खत्म हो गया. अब वो बंदूक फेंक कर वापस भाग रहा है और मैं भी उसके पीछे पीछे भाग रही हूँ डंडा लेकर, और फिर मैं डंडे से उसकी पिटाई करती हूँ और उसका पैर टूट जाता है. उस केस में आई कैन नॉट प्लीड राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस, दो ही वॉज द अग्रेसर, आई वॉज नॉट द अग्रेसर. आई वॉज नॉट द अग्रेसर, बट वहां पे राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस खत्म हो गया. सो प्लीज अंडरस्टैंड कि इन केस ऑफ राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस देयर आर फ्यू थिंग्स दैट यू हैव टू अंडरस्टैंड एंड ऑलवेज कीप इन माइंड कि जब भी राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस अगर आप दे रहे हैं किसी भी सिचुएशन में, आपने देखना है कि क्या वो जो राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस पर्सन ने एक्सरसाइज किया है वो अग्रेसर तो नहीं था, सबसे पहली चीज. दूसरी चीज आपने क्या देखनी है, क्या उसने राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस उसी दौरान एक्सरसाइज किया है स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट के बीच में, या उसने स्टार्ट होने से पहले ही राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस एक्सरसाइज कर लिया एंड होने के बाद, उस केस में भी राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस नहीं मिलेगा. दूसरी चीज आपने ये याद रखनी है. तीसरी चीज आपने क्या याद रखनी है? ये सारा आपकी बॉडी के लिए मैं आपको बता रही हूँ. प्रॉपर्टी के लिए आपके जो है राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस का जो स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट है इट इज स्प्रेड अंडर सेक्शन 105, और उसमें आपको हर एक ऑफेंस के लिए
अलग अलग स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट्स दिए हैं सेक्शन 105 के लिए। बॉडी के लिए हमारे पास एक कॉमन रूल है। बॉडी के लिए क्या रूल है? द मोमेंट द रीजनेबल एप्रीहेंशन स्टार्ट्स, द राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस स्टार्ट्स, द मोमेंट द रीजनेबल एप्रीहेंशन एंड्स, द राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस एंड्स इन केस ऑफ बॉडी। Is everybody clear? Now if we talk about the section 99 का मैंने कंट्रोलिंग सेक्शन जो आपको बताया उसमें मैंने सारा आपको जो है ये पब्लिक अथॉरिटीज और ये सब एक्सप्लेन कर दिया। आई एम जस्ट लेफ्ट विद द राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस इन केस ऑफ पब्लिक सर्वेंट। अगर एक पब्लिक सर्वेंट हु इज अंडर एन अथॉरिटी टू ब्रेक योर हाउस, उसको एक ऑर्डर दिया कि उसको जाके घर तोड़ कर आइए। अब किसी का घर तोड़ना क्या है? यू आर कॉजिंग डिस्ट्रक्शन टू द प्रॉपर्टी। इन दैट केस कैन द पर्सन हु इज द ओनर ऑफ दैट हाउस can come and stop the public authority or can stop the not the public authority can stop the public servant from breaking his house? In that case if he does so, can he plead right of private defense against property कि वो मेरा घर तोड़ रहा है और मैं अपने घर को बचाने के लिए उसको रोक रहा हूँ पब्लिक सर्वेंट को? तो उन केसेस में आपको सेक्शन 99 कहता है कि जो पब्लिक सर्वेंट है, पब्लिक सर्वेंट के लिए राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस अवेलेबल, यू कैन नॉट एक्सरसाइज राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस। सो सेक्शन 99 का आप देखेंगे आपके पास पहला पैराग्राफ और दूसरा पैराग्राफ है वो पब्लिक सर्वेंट के बारे में बात कर रहा है एंड इट इज फेवरिंग द पब्लिक सर्वेंट। और उसके नीचे आप देखेंगे दो एक्सप्लेनेशंस है, दोनों एक्सप्लेनेशंस जो है वो पब्लिक सर्वेंट के अगेंस्ट है और वो पब्लिक को फेवर कर रही है। तो ये क्या दोनों सेक्शंस कह, दोनों पैराग्राफ्स और एक्सप्लेनेशंस कह रहे हैं? अगर आप देखें ये कहता है देयर इज नो राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस against the act which does not reasonably cause the apprehension of death or of grievous hurt if done or attempted to be done by a public servant acting in good faith, underline public servant, underline acting in good faith under the color of his office, though the act may not be strictly justifiable by law. So though the act may not be strictly justifiable by law, इसमें केशवराम का केस भी है। तो ये क्या कहता है कि अगर तो पब्लिक सर्वेंट इज कॉजिंग एन एप्रीहेंशन ऑफ डेथ और ग्रीवियस हर्ट तो आपके पास राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस है, वो एक्सेप्शन है। बट अगर एक पब्लिक सर्वेंट इज डूइंग हिज वर्क अंडर द कलर ऑफ हिज ऑफिस इन गुड फेथ, he is acting under the color of his office, in that case you don't have any right of private defense. That is rule number 1. I hope everybody is clear. Second, there is no right of private defense against an act which does not reasonably cause the apprehension of death or grievous hurt if done or attempted to be done by the direction of a public servant acting in good faith under the color of his office, though that direction may not be strictly justifiable by law. तो पब्लिक सर्वेंट के डायरेक्शन पे कोई काम कर रहा है, पब्लिक सर्वेंट ने मिस्टर एक्स को कहा है कि जाकर उसको अरेस्ट कर आ जाओ, तो वहां पे जो मिस्टर एक्स है जो पब्लिक सर्वेंट के डायरेक्शन पे काम कर रहा है और अरेस्ट कर रहा है, इन दैट केस वहां पे भी आपके पास राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस नहीं। सो राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस नॉट देयर, इट इज नॉट देयर इन केस वेयर द पब्लिक सर्वेंट इज एक्टिंग अंडर द कलर ऑफ हिज ऑफिस। राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस इज नॉट देयर इन केस वेयर अ पर्सन हु इज एक्टिंग अंडर द डायरेक्शन ऑफ द पब्लिक सर्वेंट। नाउ इसी के साथ आप आ जाइए नीचे एक्सप्लेनेशन 1 and 2। वो कहता है पर्सन इज नॉट डिप्राइव्ड ऑफ राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस। दोनों पैराग्राफ्स में क्या लिखा है? राइट person is deprived of right of private defense, but आगे explanation कहता है not deprived of right of private defense against an act done or attempted to be done by a public servant as such, unless he knows or has reason to believe that the person doing the act is such public. Underline करो knows. Explanation 2, a person is not deprived of the right of private defense against an act done or attempted to be done by the direction of the public servant unless he knows or has reason to believe that the person doing the act in such direction, or unless such person states, underline states, that the authority under which he acts or if he has the authority in writing, underline writing, unless he produces such authority. So जब भी public servant अपना under the color of his office, whenever he is working, he is going to show to the private person that yes, I am a person who is a public servant. अगर आप ये नहीं बताते हैं that you know कि मैं आपका घर तोड़ रहा हूँ, मैं आपको अरेस्ट कर रहा हूँ अंडर द डायरेक्शन ऑफ द पब्लिक सर्वेंट और आई बीइंग अ पब्लिक सर्वेंट, इन दैट केस ही विल बी ट्रीटेड लाइक अ प्राइवेट पर्सन। वहां पे आपका राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस नहीं, वहां पे आपका राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस होगा। सो एक्सप्लेनेशन 1 and 2 आर फेवरिंग द पब्लिक और अ प्राइवेट मैन, और जो पैरा 1 and पैरा 2 है they are favoring the public servant. And आपका जो इसका थर्ड पैराग्राफ है वो कहता है there is no right of private defense in cases which there is time to have recourse to protection of public authorities. And then the right of private defense in no case extends to the inflicting of more harm than is necessary. See जहाँ पे मैंने आपका थर्ड पॉइंट लिखा है कि not to be used excessively. So these are few things that you have to keep in mind, and there is no right of private defense in case of free fight. Is everybody clear? In case of section 100, when the right of private defense of the body extends to causing death, इसमें आपने amendment से देख लेना है, सब section आपका 7th clause add हुआ है
और ये जो आपको लिस्ट दी हुई है 1 2 3 4 5 6 7, 7 के अंदर आपका एसिड अटैक्स जो है और अटेम्प्ट्स ऑफ थ्रोइंग एसिड भी कवर कर दिया है। इन सारे अगर ये सिचुएशंस जो आपको सेक्शन 100 में दिए हैं, अगर आपका कोई भी केस इसमें फॉल करता है तो आपको राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस टू द एक्सटेंट ऑफ कॉजिंग डेथ है। यहाँ से कभी क्वेश्चन एज सच नहीं आया है। अगर एक क्वेश्चन आएगा तो वो अप्लाइड क्वेश्चन आएगा जिसमें आपसे वो पूछ सकते हैं, बट एज सच देयर इज नेवर बीन अ क्वेश्चन फ्रॉम हियर। देन यू कम टू 101, where such right extends to causing any harm other than death। other than death जो मैंने आपको यहाँ पे बताया था कि एक तो होगा reasonable apprehension of death or grievous hurt, और other than death, other than death का आपका यहाँ पे आ जाएगा सेक्शन 100 मतलब short of death और short of grievous hurt, तो ये आपका आ जाएगा यहाँ पे सेक्शन 101। 101 तो वहां पे जो पर्सन है, the one who is exercising right of private defense, he can cause any other harm but not death, not death। ठीक है, so that is given to you under 100, and so it is short of death। okay, then 102 commencement and continuance of right of, ये आपका starting and ending point है। 102 जो है जैसे मैंने आपको बताया था कि 102 क्या बता रहा है, आपका 102 आपको बता रहा है कब आपका स्टार्ट और एंड होगा, ये आपका 102 है। ठीक है, 102 कहता है राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस ऑफ द बॉडी कमेंसेस, कमेंसेस मतलब स्टार्ट्स एज सून एज रीजनेबल एप्रीहेंशन ऑफ डेंजर टू द बॉडी अराइजेस। ठीक है, एंड इट कंटिन्यूज एज लॉन्ग एज सच एप्रीहेंशन ऑफ डेंजर टू द बॉडी कंटिन्यूज, एंड इट विल एंड व्हेन द डेंजर सबसाइड्स। ठीक है, 103 इज एग्जैक्टली लाइक 100, बट यहाँ पे इट इज विद रिस्पेक्ट टू प्रॉपर्टी। आप 103 को भी प्लीज पढ़िएगा, और 103 में आपने देखना है, आपको ये क्लॉजेस जरूर पढ़ने हैं 1 2 3 4। इन केसेस में आप डेथ कॉज कर सकते हो। इन केस अ पर्सन इज कमिटिंग रॉबरी, the person who is committing robbery, against him you can exercise the right of private defense to the extent of causing death। house breaking by night, if it is house breaking by day, in that case you cannot cause death। if it is mischief by fire, only then simple mischief hai, you cannot cause death। you can cause any other harm but not death। if you cause death in case of mischief, normal mischief, in that case you have exceeded your right of private defense। if you have exceeded the right of private defense, आपको complete immunity नहीं मिलेगी, but आपको mitigate कर दिया जाएगा सेक्शन 300 की एक्सेप्शंस में आपका केस फॉल करेगा। सो आपने ये 1 2 3 4 आपने केसेस याद रखने हैं, जैसे आपको सेम 100 के अंदर दिए ना 1 2 3 4 5 6 एंड 7th ऐड किया है, इन 7 केसेस में आप डेथ कॉज कर सकते हो। ऐसे प्रॉपर्टी के केस में ये 4 केसेस में आप डेथ कॉज कर सकते हो। 104 इज एग्जैक्टली लाइक योर 102, दिस इज टॉकिंग अबाउट कमेंसमेंट एंड एंडिंग ऑफ राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस इन केस ऑफ प्रॉपर्टी। 105 जो है, सॉरी 104 जो है, इट इज नॉट लाइक 102, but it is rather like 101। 101 is short of death, and in case of right of private defense also, in case of property which is short of death, तो आपका वो 104 में आ जाएगा। and 105 is just like जहां पे आपका हमने किया कि राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस जो है 102 में when it will start when it will end। 105 is also you can just give one fair reading, don't think so कि प्री में कुछ क्वेश्चन आएगा 105 में। आप देखो कमेंसमेंट एंड कंटिन्यूएंस ऑफ राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस ऑफ प्रॉपर्टी, राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस ऑफ प्रॉपर्टी की बात कर रहा है, नॉट बॉडी। आप उसको स्क्वायर बॉक्स में डाल दो, प्राइवेट डिफेंस ऑफ प्रॉपर्टी commences, commences means starts when a reasonable apprehension of danger to the property commences। the right of private defense of property against the theft, तो आप देख रहे हैं इसमें अलग अलग क्लॉजेस दिए हैं। थेफ्ट का है आपका सेकंड पैराग्राफ, थर्ड पैराग्राफ रॉबरी की बात कर रहा है, और फिर उसका नेक्स्ट पैराग्राफ क्रिमिनल ट्रेसपास की बात कर रहे हैं। तो आप इसको एक बार ही पढ़ सकते हैं, गिव इट अ फेयर रीडिंग। 106 इसकी इलस्ट्रेशन अभी एक दो बारी आपके एग्जाम्स में आ चुकी है। 106 कहता है, इसको इंपॉर्टेंट मार्क कर लो 106 को। If in the exercise of right of private defense against an assault which reasonably causes the apprehension of death, underline reasonably causes the apprehension of death, कहाँ पे हमने किया सेक्शन 100 में and 103 में, the defense the defender be so situated that he cannot effectually exercise that right without the risk of harm to an innocent person, his right of private defense extends to the running of that risk। A is attacked by a mob who attempts to murder him, he cannot effectually exercise his right of private defense without firing on the mob, and he cannot fire without the risk of harming young children who are mingled with the mob। A commits no offense if by so firing he harms any of the children। ये आपको इलस्ट्रेशन आए, अगर एक ए जो कि एक उसको बहुत दिस वायलेंट मॉब अटैक करती है, और ए जो है बच्चों के बीच में है, और ए अपने आप को नहीं बचा सकता जब तक वो फायर ना करे, और अगर वो फायर करेगा तो किसी ना किसी बच्चे की अगर डेथ भी हो जाती है तभी भी उसको राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस मिलेगा अंडर 106। ठीक है, इज एवरीबडी क्लियर? सो हियर वी फिनिश योर डिफेंसेस, एंड नाउ वी कम टू द
अबेटमेंट दैट इज इनकोहेट ऑफेंस। अभी तक आप रियलाइज करेंगे हमने जो 106 सेक्शंस पढ़े हैं, अभी तक हमने एक भी ऑफेंस नहीं पढ़ा है। वी हैवंट स्टार्टेड विद द ऑफेंसेस। ओके, नाउ वी कम टू द इनकोहेट ऑफेंस। इनकोहेट क्या होता है? इनकम्प्लीट। इनकम्प्लीट। अब आप सेक्शन 107 से देखो बेटा, सेक्शन 107 से आपका जो अबेटमेंट है, इट गोज अप टिल सेक्शन 120, 107 टू 120। इसको भी पढ़ने का एक तरीका है। 107 से देखो 120 तक जो आपको ये सेक्शंस है, ये अबेटमेंट के हैं। इसमें आपको जो प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन के लिए याद रखना है, इसमें देखो बेटा 107 से लेके 107, 108 एंड 109, 107, 108 एंड आपका जो 109 है, ये तीन ऐसे सेक्शंस हैं। Let me see, 107 and then we have 108 and then okay 109 onwards. Okay, so basically 107 अबेटमेंट डिफाइन कर रहा है। देखो बेटा इसका ब्रेकअप ये रहेगा इस पूरे चैप्टर का। 108 अबेटर डिफाइन कर रहा है, अबेटर डिफाइन कर रहा है। एंड सेक्शन 109 टू 120 आप देखेंगे ये सारी आपकी पनिशमेंट्स। This will also help you for the interview. 109 to 120 is only dealing with punishments with in respect to जहां पे भी आपकी अबेटमेंट है। क्योंकि देखो बेटा अबेटमेंट में भी एक से ज्यादा लोग हैं। ए ने अबेट किया कि जाके खून कर कर आओ, बी जाके खून नहीं करता है, क्या उसकी लाइबिलिटी होगी? किसकी? ए की, जिसने अबेट किया है। ए ने अबेट किया ग्रीवियस हर्ट कॉज करो, बी ने ग्रीवियस हर्ट की जगह मर्डर कर दिया, उसकी ही हैज किल्ड द पर्सन, तो ए की लाइबिलिटी कितनी होगी, बी की कितनी लाइबिलिटी होगी? ए ने ए की ए जो बेटर है उसकी इंटेंशन अलग है, बी की इंटेंशन अलग है, और उसने कुछ भी एक एक्ट किया है, तो दोनों की लाइबिलिटी क्या होगी? सो ये जितने भी आपके कॉम्बिनेशंस और परम्यूटेशंस है ना, ये 109 टू 120 में कवर किए गए हैं। कि अबेटेड एक्ट इज कमिटेड देन व्हाट ऑफेंस, अबेटेड एक्ट इज नॉट कमिटेड देन व्हाट ऑफेंस। ठीक है, अबेटेड एक्ट इज अबेटेड एक्ट इज डिफरेंट, बट दी अबेटर ने जो एक्ट बोला है वो डिफरेंट है, और जो अबेटेड एक्ट कमिट हुआ है वो डिफरेंट है। तो वो सारे जो एरियाज है वो 109 से 120 के अंदर कवर्ड है। सो इसका भी मैंने एक चार्ट दिया था पहले, व्हेन आई वाज डूइंग द द स्टूडेंट्स हु हैव टेकन द होल कोर्स एंड दे वुड नो 109 टू 120। आप एक बार ही उस चीज को रिविजिट करना, दैट विल जस्ट गिव यू अ क्विक ग्लैंस विद रिस्पेक्ट टू पनिशमेंट्स। बट यस, अगर आपको सिंपल एक इफ यू आर आस्क इफ दे आर आस्किंग यू थ्योरेटिकल क्वेश्चन, राइट, तो अगर आपको थ्योरेटिकल क्वेश्चन पूछा गया है तो सिर्फ आपको वो पूछेंगे कि अबेटमेंट कहाँ डिफाइंड है और अबेटर कहाँ डिफाइंड है। और यही आपका है पूरा का पूरा जो चैप्टर है, दैट इज योर चैप्टर 5, दैट इज डीलिंग विद अबेटमेंट। इज एवरीबडी क्लियर विद दिस ब्रेकअप? ठीक है, now you see it says abatement of a thing, a person abets the doing of a thing, abets the doing of a thing who सबसे पहला बोलता है instigates। तो आपकी जो अबेटमेंट है तीन तरीके की होती है बेटा, एक हो गया इंस्टिगेट, एक हो गया एंगेजिंग इन कॉन्स्पिरेसी, और तीसरा हो गया इंटेंशनल एडिंग। बस आपने अबेटमेंट के अंदर एक तो आपने 107 मार्क कर लो प्री के लिए, और तीसरा आपने याद रखना है तीन तरीके से अबेटमेंट होती है। इंटेंशनल एड किया है आपने, और या फिर आपने क्या किया है, यू हैव एंगेज्ड इन कॉन्स्पिरेसी, एंड तीसरा क्या है, जहां पे आपने इंस्टिगेट किया, एक्टिव इंस्टिगेशन होनी चाहिए। ठीक है, उसके बाद जो आपकी एक्सप्लेनेशन है, explanations, can you see explanation 1 and explanation 2? So आपका जो intentional aiding है, जो थर्ड पार्ट है of abatement, जो तीसरे तरीके का abatement है, it, and also you have to remember these are three, मतलब either of it can, you can abet either by intentionally aiding, or you can abet, or I'm using the term engaging in conspiracy, or you can abet by इंस्टिगेशन, एक्टिव इंस्टिगेशन। ठीक है, तो जो एक्सप्लेनेशन 1 और एक्सप्लेनेशन 2 है वो उसी को ही आगे एक्सप्लेन कर रहे हैं। पहले मैं एक्सप्लेनेशन 2 पढ़ूंगी, क्योंकि एक्सप्लेनेशन 2 इज एक्सप्लेनिंग द third kind of abatement, that is by intentional aiding. It is whoever either prior, underline prior, or at the time of commission of an act does anything in order to facilitate, that means for the purpose of facilitating the commission of that act, and thereby facilitates the commission thereof, is said to aid the doing of, is said to aid, he is said to aid. Aiding is also a method of abatement, and that is covered under your third। तो थर्ड जो आपने लिखा हुआ है थर्ड क्लॉज, वहां पे आप लिख लो रेड विद एक्सप्लेनेशन 2।
एंड जो आपका एक्सप्लेनेशन 1 है, अ पर्सन हु बाय विलफुल मिसरिप्रेजेंटेशन और विलफुल कंसीलमेंट of a material fact which he is bound to disclose, voluntary causes or procures or attempts to cause or procure a thing to be done is said to instigate that doing of thing. So instigate को underline कर दो, वहां लिख लो ये आपकी फर्स्ट जो आपका फर्स्ट टाइप ऑफ अबेटमेंट है, दैट इज इंस्टिगेशन, उसके साथ. सो बेसिकली आपने क्या करना है सेक्शन 107 में, आपने सेक्शन 107 में देखना है कि तीन तरीके की आपकी एक अबेटमेंट, तीन तरीके से अबेटमेंट हो सकती है. एक तो इंस्टिगेशन, इंस्टिगेट्स, engages in conspiracy और intentional aiding. और आपने एक सेक्शन याद रखना है प्री के लिए, इंस्टिगेशन क्या होती है इसको आपने एक्सप्लेनेशन 1 के साथ पढ़ना है, और इंटेंशनल एडिंग को आपने एक्सप्लेनेशन 2 के साथ पढ़ना है, और इसके अंदर जो आपको इलस्ट्रेशन दी है आपने बस वो पढ़नी है फॉर योर प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन. इज एवरीबडी क्लियर? आपने साथ में इसकी इलस्ट्रेशन पढ़नी है. ठीक है, ये तीन तरीके की क्या है in your abetment. ठीक है. Then you come to your abetter. So again abetter का आपने क्या देखना है, abetter का आपने section को याद रखना है, and it says a person abets an offense who abets either the commission of an offense or the person capable by law of committing an offense, capable by law of committing an offense within the same intention, with same intention and knowledge as that of the abettor. So abettor is the person who is an abettor? A person who is capable by in law. आपने ये याद रखना है. This person should be capable in law. Who is capable in law? Who is capable in law? Person who is of a sound mind. ठीक है. A person who is mature enough to commit an offense. So ये person capable by law. Abettor मतलब अगर एक minor जो है या एक person who is of an unsound mind बॉम्ब देता है मिस्टर बी को, और मिस्टर बी जाके वो बॉम्ब जो है प्लेस कराते हैं, और जिसकी वजह से वो बॉम्ब जो है ब्लास्ट हो जाता है, बॉम्ब ब्लास्ट. अब यहाँ पे ये जो माइनर है, इज ही एन अबेटर? विल ही बी लायबल? विल ही गेट द पनिशमेंट एज एन अबेटर? इज ही एन अबेटर? नो, बिकॉज अबेटर कौन है आपको सेक्शन 108 बता रहा है, अबेटर शुड बी अ पर्सन हु इज केपेबल इन लॉ बाय ऑफ कमिटिंग एन ऑफेंस, बट बी की उसमें फुल लायबिलिटी होगी. ऑन द अदर हैंड अब मिस्टर ए जो है हु इज एन एडल्ट and he gives a minor or a person of an unsound mind a bomb, और उसको कहता है कि वो बॉम्ब को प्लांट कर कर आओ, वो ब्लास्ट हो जाता है. अब इस केस में ये तो अबेटर है, बट अबेटर कौन होना चाहिए? पर्सन हु इज केपेबल, इसकी लायबिलिटी है. बट अबेटेड पर्सन कौन है? अ माइनर. तो अबेटेड पर्सन कोई भी हो सकता है, बट अबेटर ये आप देख रहे हैं जो ऑफेंस कर रहा है ये तो मेन ऑफेंडर है ना. आप जब ये पनिशमेंट्स पढ़ेंगे, सेक्शंस पढ़ेंगे, आपने ध्यान में रखना है ये पूरा का पूरा जो चैप्टर 5 है ये सिर्फ और सिर्फ इस पर्सन की बात कर रहा है. जो पर्सन एक्चुअली ऑफेंस कमिट कर रहा है ना, उसके बारे में तो आपका मेन सेक्शन ही बता रहा है ना. इसने चाहे मर्डर किया, इसने चाहे चोरी की, इसने चाहे कुछ भी किया, तो उसमें तो आपको डिफेंस मिल ही जाएगा. क्योंकि जिसने अगर चोरी जिसने की है वो एक माइनर है, मतलब 6 साल का बच्चा है, 5 साल का. माइनर का मतलब 18 साल मत लेना यहाँ पर. व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज अ चाइल्ड हु इज 0 to 7 years, 0 to 7 years. अनसाउंड माइंड सेक्शन 84 का डिफेंस मिल जाएगा. तो यहाँ पे फिर इसकी लाइबिलिटी नहीं होगी क्योंकि ये तो अबेटेड पर्सन है. सो आप प्लीज ध्यान में रखना 108 सिर्फ अबेटर की बात कर रहा है. एक्सप्लेनेशन 1 द अबेटमेंट ऑफ द इलीगल, या आप एक्सप्लेनेशन 1 एंड 2 थोड़े से आपके कॉन्सेप्चुअल बेस्ड है, इनको आप एक बारी पढ़ लेना. और इसकी illustrations जो explanation 1, 2 and 3 you should read them properly, and illustrations also you should do it properly. But please remember that 108 is simply just talking about this person. He is not talking about the main offender, principal offender की बात नहीं कर रहा है वो. ठीक है. Then we come to this 108. You can just read it is extraterritorial jurisdiction if abatement in India of offences outside India. इसकी illustration जो है it is irrelevant because it is talking about Goa when Goa was not part of India, but now it is part of India. So 180 you can just simply read it. अब आपको इस पूरे चैप्टर में ना मैं आपको सिर्फ दो सेक्शंस और बताऊंगी विद रिस्पेक्ट टू पनिशमेंट, जो कि इम्पोर्टेंट है. जहां पे जो अबेटर है उसने जो ऑफेंस अबेट किया, अब उसमें दो चीजें हो सकती हैं. क्या हो सकता है? अबेटेड एक्ट कमिटेड, या फिर अबेटेड एक्ट नॉट कमिटेड. अबेटेड एक्ट नॉट कमिटेड, यही चीजें होंगी ना. और तीसरा क्या हो सकता है कि अबेटर ने कुछ एक्ट बोला और अबेटेड पर्सन ने कोई और ही एक्ट कर दिया.
या तो अबेटेड एक्ट इज कमिटेड, या फिर अबेटेड एक्ट इज नॉट कमिटेड, या फिर अबेटेड एक्ट इज डिफरेंट फ्रॉम व्हाट वाज अबेटेड, वो तीसरी कैटेगरी है, ठीक है। बट जहां पे अबेटेड एक्ट इज नॉट कमिटेड, अबेटेड एक्ट इज नॉट कमिटेड, ये आपका सेक्शन 114। एंड जहां पे अबेटेड एक्ट इज कमिटेड, लाइबिलिटी इज अंडर सेक्शन 109। आई थिंक इट इज 114। अबेटेड एक्ट इज, अच्छा 114 में आपका नहीं, यहाँ पे आएगा 115 116। अबेटेड एक्ट नॉट कमिटेड 115 116। बस आप समझ रहे हैं पनिशमेंट्स में आपने क्या पढ़ना है। अगर तो अबेटर ने जो अबेटेड एक्ट जो अबेट किया था वो अबेटेड एक्ट कमिट कर लेते हो आप, तो 109, तो 109 आप देखो, आप 109 पनिशमेंट ऑफ अबेटमेंट इफ द एक्ट अबेटेड इज कमिटेड, अंडरलाइन अबेटेड एक्ट इज कमिटेड in consequence and where no express provision is made for its punishment. No express provision is made for its punishment, जैसे आपका अबेटमेंट टू मर्डर, अबेटमेंट टू सुसाइड, उसके लिए हमारे पास एक्सप्रेस प्रोविजंस है, जहां पे आपको पूछा एक्सप्रेस प्रोविजन तो आप वहीं पर ही जाएंगे। और 109 को आप एक बारी 114 के साथ जरूर इंटरलिंक कर लीजिएगा, क्योंकि 114 भी बोल रहा है बेटर पर्सन, वो 114 क्या बोल रहा है, अबेटर ने जो अबेट किया था और अबेटेड पर्सन ने वही एक्ट किया, बट वहां पे जो अबेटर था ही वाज प्रेजेंट ऑन द स्पॉट, he was present on the spot, तो 114 आएगा। if the better is not present on the spot तो 109 आ जाएगा। 109 114 एंड सेक्शन 34 तीनों का मेंस एग्जामिनेशन के लिए आपको एक इंटरलिंकिंग पता हो, इंटरलिंकिंग तो नहीं कि कॉन्सेप्चुअली आपको पता होना चाहिए कहाँ कहाँ पे उनकी एप्लीकेबिलिटी है, बट फॉर प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन अबेटेड एक्ट कमिटेड 109, अबेटेड एक्ट नॉट कमिटेड 115 116। प्लीज कम टू 115 116। अबेटेड abatement of offense punishable with death or imprisonment for life if offense not committed, तो and 116 abatement of offense punishable with imprisonment if offense be not committed। सो यहाँ पे उसने 115 में बोल रहा है अगर अबेटर ने ऐसा एक्ट अबेट किया था जिसकी पनिशमेंट इज डेथ और लाइफ इम्प्रिजनमेंट, तो वहां पे 115 के तहत पनिशमेंट मिलेगी किसको, अबेटर को, अबेटेड पर्सन को तो नहीं मिलेगी क्योंकि उसने एक्ट किया ही नहीं है, तो यहाँ पे इट इज नॉट कमिटेड। इज एवरीबडी क्लियर विद दिस अनदर पार्ट दैट आई हैव जस्ट नाउ एक्सप्लेन्ड। 108 की आपने सारी जो इलस्ट्रेशंस है बहुत अच्छे से करनी है, 109 रेड विद 114, 115 116 आपने करना है। उसके बाद आप आ जाइए 110 111, यू कैन जस्ट गिव इट अ फेयर रीडिंग with respect to 111 because they are very closely knit। एक बारी इन सारी पनिशमेंट्स को और इलस्ट्रेशंस को आप पढ़ लेना। अगर आपको कुछ सवाल हो, कोई डाउट आता है, देन यू कैन डेफिनेटली आस्क मी टुमारो। नेक्स्ट आप इसमें जो सेक्शन है आप मार्क कर सकते हैं, दैट इज 117 117। वो बात आता है, इट टॉक्स अबाउट ग्रुप अबेटमेंट। ग्रुप अबेटमेंट मतलब इफ एनी स्पीच इज गिवन इन टीवी विच इज वेरी डेरोगेटरी एंड अ पब्लिक और एक मॉब जो है वो बड़ा क्या हो जाता है, दे गेट अबेटेड, इन दैट केस द लायबिलिटी वुड बी अंडर 117। उसका इलस्ट्रेशन आप पढ़ सकते हो, ठीक है। एंड 118 19 120 they deal with such abatement wherein the concealment of design is prior to the commission of offense। so there is concealment of design, तो concealment का मतलब होता है छुपाना। यहां से कभी सवाल नहीं आया है, एक बारी आप 118 19 20 एक बारी आप पढ़ सकते हो, ठीक है। उसके बाद आप प्लीज आ जाइए क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी। आपने याद रखना है क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी 1980 में जब इंडियन पिनल कोड बना था, दैट टाइम वी डिडंट हैव क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी। पूरे आईपीसी के अंदर सिर्फ कॉन्स्पिरेसी अबेटमेंट के अंदर ही पनिशेबल था। बट यस कॉन्स्पिरेसी जो आपका 107 में है वहां पे एक ओवर्ट एक्ट वाज रिक्वायर्ड एंड देयर वाज नो प्रोविजन अंडर इंडियन पिनल कोड जहां पे सिर्फ कॉन्स्पिरेसी मतलब हम लोग पनिश कर सके। सिर्फ कॉन्स्पिरेसी मतलब जहां पे लोग कंस्पायर कर रहे हैं और अभी एक्ट नहीं कमिट किया है, और सिर्फ कॉन्स्पिरेसी में ही आप उनको पनिश कर सकते हैं। इसीलिए 120A जो है इट वाज एडेड इन द ईयर 1913। तो आपने सिर्फ 120 के अंदर जब आप पढ़ेंगे, एक तो सेक्शन को याद रख लेना बेटा, और इसका जो प्रोवाइजो है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट है। आप देखो बेटा जो कॉन्स्पिरेसी है, मैं आपको एक नटशेल बता रही हूँ सेक्शन 120A का। कॉन्स्पिरेसी किस चीज की हो सकती है, कॉन्स्पिरेसी हो सकती है एक ऑफेंस करने की, कॉन्स्पिरेसी हो सकती है किस चीज की, किसी भी एक इलीगल एक्ट को करने की। इलीगल एक्ट क्या होता है, कहाँ डिफाइंड है, कैन एनीबडी क्विकली टेल मी। और दूसरा हो सकता है कॉन्स्पिरेसी, इलीगल एक्ट इज डिफाइंड अंडर सेक्शन 43 43। बेटा, यस 43 आईपीसी, ठीक है। और एक हो सकती है आपकी कॉन्स्पिरेसी टू डू एन एक्ट, एक्ट विच इज
not illegal by illegal means. इलीगल मीन्स ये 3 चीजों की कॉन्स्पिरेसी। बट याद रखना बेटा कि यहाँ पे अगर कॉन्स्पिरेसी इज टू डू दीज थिंग्स, यहाँ पे इसको पनिश करने के लिए यहाँ पे हमें कॉन्स्पिरेसी प्लस एक्ट इज रिक्वायर्ड, ओनली देन इट इज पनिशेबल। और ये जो है आपका कॉन्स्पिरेसी टू कमिट एन ऑफेंस, कॉन्स्पिरेसी टू कमिट एन ऑफेंस, इसके लिए ओनली कॉन्स्पिरेसी इज पनिशेबल, ओनली कॉन्स्पिरेसी इज पनिशेबल। यहाँ पे अगर आपने कोई भी एक्ट नहीं किया है, एक्ट नॉट रिक्वायर्ड, एक्ट not required, not required. If people are conspiring to commit an offense, what is an offense? Section 40. It is only conspiracy. They are just conspiring. It is punishable under 120A. But if you're conspiring to do an illegal act, in that case, an act is required. Only conspiracy cannot be punishable. ये पूरा concept आप 120A का धीरे धीरे पढ़ेंगे, ये प्रोवाइजो में यही चीज एक्सप्लेन की गई है, ठीक है। और आपने इसमें सिर्फ इसके, और फिर आगे 120B जो है पनिशमेंट ऑफ क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी की बात करता है। और जो पनिशमेंट है ऑफ क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी, इसको भी 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है। जो कॉन्स्पिरेसी है, इफ इट इज टू डू एन एक्ट विच इज पनिशेबल विद 2 years और अपवर्ड्स, और इफ इट इज एन एक्ट विच इज पनिशेबल विद लेस देन 2 years, तो वहां पे आपको 2 अलग अलग तरीके की पनिशमेंट दी है। आप देखेंगे 120B में जो है 2 पार्ट्स में है वो। 120B सबसेक्शन 1, इट इज टॉकिंग अबाउट whoever is a party to a criminal conspiracy to commit an offense, को सर्कल कर दो, not to commit an conspiracy to commit an offense। आप समझ रहे हैं? कॉन्स्पिरेसी टू कमिट एन ऑफेंस, कॉन्स्पिरेसी टू डू एन इलीगल एक्ट, कॉन्स्पिरेसी टू एक्ट विच इज नॉट इलीगल बाय लीगल मीन्स। तो 120B का जो फर्स्ट पार्ट है वो कहता है कमिट एन ऑफेंस पनिशेबल विद डेथ, इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ और रिग्रेस इम्प्रिजनमेंट फॉर 2 years और अपवर्ड्स, 2 साल से ऊपर। तो उसमें 120B का फर्स्ट पार्ट विल बी अट्रैक्टिव। एंड आपका क्लॉज 2 जो है वो बोलता है whoever is a party to a criminal conspiracy other than a criminal conspiracy to commit an offense punishable as aforesaid shall be punished। तो यहाँ पे आपके आ जाएगा conspiracy to commit an offense which is punishable less than 2 years, to do conspiracy to do an illegal act, conspiracy which is an act, conspiracy of an act which is not illegal by legal means, वो आपका subsection 2 में आ जाएगा। एंड इसको आप फर्दर इंटरलिंक करेंगे विद सैंक्शन सेक्शन 196। अगर आपको याद है 190 में हमने कॉग्निजेंस किया था सीआरपीसी में, और उसी का ही यहाँ पे कॉग्निजेंस जो है 196 सब सेक्शन 2 में लेंगे, तो उसका इंटरलिंकिंग यहाँ पर है। ओके, आई होप एवरीबडी इज क्लियर विद कॉन्स्पिरेसी। एंड यू शुड ऑल्सो रिमेंबर विद रिस्पेक्ट टू कॉन्स्पिरेसी कौन से ईयर में ऐड हुआ है, 1913 में ऐड हुआ है। कमिंग टू चैप्टर 6 नाउ, ऑफेंसेस अगेंस्ट स्टेट। बेटा ऑफेंसेस अगेंस्ट स्टेट, ये भी आपका प्री बेस्ड सेक्शन है बेटा, प्री बेस्ड चैप्टर है। यहाँ से आपको क्वेश्चंस जो हैं क्या आ सकते हैं, एक तो 121 हाई ट्रीजन की बात कर रहा है ये 121। इसमें आप यू कैन जस्ट 121 का एक तो मार्जिनल हेडिंग याद रख सकते हैं, ठीक है। एंड इसमें आप याद रखना जो आपका इलस्ट्रेशन है, ए जॉइंस एन इंसर्केशन अगेंस्ट द गवर्नमेंट। इंसर्केशन मीन्स opposite, people who are opposing the authority, people who are opposing the government. A has committed the offense defined in this section। तो इसका आप जो, और इसकी पनिशमेंट भी याद रख सकते हो फॉर इंटरव्यू इन केस दे आस्क। 120A जो है conspiracy to commit, again conspiracy to commit offense punishable by section 121। तो जहां पे सिर्फ आप कंस्पायर कर रहे हो उसमें आपकी पनिशमेंट है इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ। और जहां पे आप एक इफ यू आर वेजिंग और अटेम्प्टिंग टू वेज वॉर अगेंस्ट द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और अबेटिंग, तो वहां पे आपकी जो पनिशमेंट है इट इज एज ग्रेव एज डेथ उस केस में। बाकी आप इस चीज को छोड़ सकते हो। आप 124A सेडिशन का सेक्शन याद रख सकते हो बेटा। सेडिशन में आपको सेक्शन ही याद रखना है। सेडिशन इज व्हाट? डिफेमिंग अ गवर्नमेंट। व्हेन यू डिफेमिंग अ पर्सन 499, व्हेन यू डिफेमिंग अ गवर्नमेंट इट इज सेडिशन 124A, ठीक है। और इस सेक्शन को भी आई वुड रेकमेंड यू स्ट्रांगली दैट यस यू शुड रीड इट प्रॉपर्ली। जैसे आपको एक्सप्लेनेशन 1 है, वहां पे डिसअफेक्शन बताया गया है। डिसअफेक्शन वुड इंक्लूड व्हाट, वहां पे अंडरलाइन कर लो, डिसलॉयल्टी एंड ऑल फीलिंग्स ऑफ एनिमिटी। So exactly what is given in the bare act you should write, मतलब you should mark। and explanation 2 में आपको बताया है what is disappropriation, that is disapproval of the measures of the government। तो आपको explanation 1 and 2 को अच्छे से एक बार आप प्लीज पढ़ना। बाकी आप सेक्शंस को स्किप कर सकते हो। आपका जो नेक्स्ट चैप्टर है चैप्टर 7, दैट इज विद रिस्पेक्ट टू हार्बरिंग, दिस आल्सो यू कैन जस्ट स्किप और यू कैन जस्ट गिव वन फेयर रीडिंग विद रिस्पेक्ट टू दिस पर्टिकुलर चैप्टर आल्सो।
So if I go a quick recap till here, chapter 8 तक, उसके बाद मैं फटाफट से chapter 8 करवाऊंगी. Chapter 1 was preliminary. Chapter 2 was dealing with explanation was dealing with definitions. Chapter 3 हमने किया punishments. Chapter 4 हमने किया आपका general exceptions. Chapter 5 and chapter 5a जो था, that was dealing with what? Chapter 5 abatement. Chapter 5a conspiracy. And then chapter 6 offenses against the state. Is everybody clear till here, beta? If you have any questions, please ask. If you have any questions, please ask. Okay, then we come to offenses against public tranquility. यहाँ से आपका important है. Thank you, Amit, for responding. Others should also respond. Yes. Okay, offenses against public tranquility. 141, 5 or more persons, common object. ये आप बस underline कर लो और section को याद रख लो बेटा. ठीक है. And also you should read once 1, 2, 3, 4, 5 जो आपको ये दिए, जो आपको clauses दिए हुए हैं. ठीक है. Writing का section 146. Also, you should, I feel you should at least have one glance on the punishments also. Unlawful assembly के लिए punishment 143 में दिया है. और जब आप punishments पढ़ते हैं तो थोड़ा ध्यान से देखना कि cognizable है, bailable है, कितना imprisonment है. That you should थोड़ा सा ध्यान से देखना इस चीज को. Writing के लिए भी force और violence को underline कर दो. Unlawful assembly, punishment 2 years. ठीक है. Then you can come 149 is just talking about common object mainly for means. उसके बाद आप 153A promoting enmity between different groups of grounds religion, ये आपको 153A का marginal heading आपको you should know. ठीक है. 153B also you should, एक तो आपको पता होना चाहिए कि कौन से amendment से add हुआ है 1972 and also prejudice to the national integration, representations or otherwise, sorry, imputations, assertions prejudicial to national integration, just the marginal heading. और यहाँ पे आप words either spoken, written, signs or by visible representation. I feel you can just give one fair reading, else you can leave. उसके बाद आपका 154, 155, 156 they are dealing with vicarious liability. आप इसको भी skip कर सकते हैं. You can skip it. AFRE 159. अब इस पूरे चैप्टर में अभी 159 तक आपके जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो क्या क्या है. एक तो अनलॉफुल असेंबली क्या होता है, उसमें कितने लोग हैं, आपका राइटिंग का कॉन्सेप्ट क्या है, एफरे क्या है. ठीक है. और उसके अलावा पनिशमेंट्स क्या है. देन पर्सोनेशन. देन यू कैन जस्ट कम टू, यू कैन स्किप चैप्टर 9. ठीक है. बट 170 आप जो सेक्शन है इसका मार्जिनल हेडिंग याद रखेंगे. पर्सोनेटिंग अ पब्लिक सर्वेंट. ठीक है. उसके बाद इसको आपने ना पर्सोनेटिंग अ पब्लिक सर्वेंट, देयर इज वन मोर सेक्शन ऑन पर्सोनेशन. यू डोंट हैव टू, ओके, आई थिंक जैसे जैसे हम आगे जाएंगे वो सेक्शन आएगा. बट आप 170 को प्लीज फ्री के लिए मार्क कर लो. उसके बाद आप चैप्टर 9A you can just remember that 171B is talking about bribery. कभी क्वेश्चन नहीं आया है बट फिर भी आपको एक पता होना चाहिए. ठीक है. पर्सोनेशन एट इलेक्शंस, yes, this is what I was talking about. 171D, पर्सोनेशन एट इलेक्शंस. एंड इफ यू आर आस्क्ड पर्सोनेटिंग अ पब्लिक सर्वेंट तो 170 है. Personation at elections. Personation, you understand what is the offense of personation? When you are imitating to be someone whom you are not. ठीक है. And this has been added by 2003 amendment. ठीक है. उसके बाद आप you can skip 176 omission to give notice or information to public servant. ये आपको 176 you should read to be read with your section 39 and 40 of CRPC. ये मैं जैसे आपको कल भी बता रही थी कि 176 ये वाले आपके बहुत पहले हाथ से क्वेश्चंस आते थे, अभी नहीं आते हैं, बट एक बारी आपको फिर भी 176 का मार्जिनल हेडिंग पता होना चाहिए. 177 फर्निशिंग फॉल्स इंफॉर्मेशन ऑल्सो, इसकी इलास्ट्रेशंस इंपॉर्टेंट. प्लीज 177 को अच्छे से पढ़ना अलॉन्ग विद द इलास्ट्रेशंस ऑल्सो. ठीक है. देन 180 रिफ्यूजिंग टू साइन, यू कैन जस्ट रीड 180 मार्जिनल हेडिंग यू कैन रीड. Then you can come to 191 important, 192 very important. इसकी illustrations very important. Giving false evidence and fabricating false evidence. Fabricating means concocting. When you cook up something, when your fab, तो यहाँ पे आपका illustration A, B, C of 192 very important. And giving false evidence is also very important. Perjury जिसको हम कहते हैं A, B, C, D, E, इसको आप skip मत करना, बहुत अच्छे से पढ़ना 191, 192 को. Or punishment, you can just use it you can just read it. 198 also you should at least read it once, using as
ट्रू, अ सर्टिफिकेट नोन टू बी फॉल्स। ठीक है, उसके बाद आप causing disappearance of evidence of 201, you can just read it once, 201, because this is the last moment. अभी आप लास्ट मोमेंट में नए नए सेक्शंस को इंट्रोड्यूस नहीं कर सकते हैं। अगर आपने इन सेक्शंस को पढ़ा है, वेल एंड गुड। यहाँ से सवाल सिर्फ जो मैंने अभी आपको बताया 191 192 यहीं से सवाल पहले आपको क्वेश्चंस आए हैं। बट 201 202 203 204, if you can read it once, that will be great. If you want to skip, you can skip also because you've never got questions from here. But in case ऐसे आपको इंटरव्यू में पूछ सकते हैं क्या, जैसे आप 211 देखो, फॉल्स चार्ज ऑफ ऑफेंस मेड विद इंटेंट टू इंजर, तो आपको पूछ सकते हैं कि इट इज ट्राइबल बाय मैजिस्ट्रेट, विच मैजिस्ट्रेट, मैजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास। पैरा 2 में आप देखो ट्राइबल बाय मैजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास, ट्राइबल बाय कोर्ट ऑफ सेशंस, हार्बरिंग ऑफेंडर्स। क्योंकि व्हाट डू यू मीन बाय हार्बरिंग? हार्बरिंग क्या होता है? किसी को पनाह देना, शेल्टर करना। ठीक है ना? सो इफ यू आर हार्बरिंग एन ऑफेंडर, बट इफ दैट ऑफेंडर हैज कमिटेड कैपिटल ऑफेंस और इफ इट इज पनिशेबल विद imprisonment for life or with imprisonment, आई वुड रेकमेंड एक सिंपल रीडिंग एटलीस्ट आपको इन सेक्शंस की देनी चाहिए विद कंप्लीट फोकस। इफ यू वांट टू स्किप, यू कैन स्किप आल्सो, बिकॉज शॉर्ट यहाँ से क्वेश्चन नहीं आएगा, इट विल नॉट कम। ठीक है, ऑलराइट। देन 216A, पेनल्टी फॉर हार्बरिंग, दे आर ऑल डीलिंग विद हार्बरिंग, दे आर ऑल हार्बरिंग। ठीक है, इन सब सेक्शंस को आप एक बार ही देख सकते हैं। इफ यू वांट, यू कैन स्किप आल्सो। देन यू कैन कम टू Okay, 228A, you should read properly. 228A, disclosure of identity of the victim of certain offenses. 228A, 228A, ठीक है, इसकी एक्सप्लेनेशन को भी अच्छे से पढ़ना। ठीक है, और सबसेक्शन 3, एनी प्रोसीडिंग को अंडरलाइन कर दो वहां पर। तो 228A, उसके अलावा काउंटरफीटिंग ऑफ कॉइन्स 231, यू कैन मार्क 231। ठीक है, 241, डिलीवरी ऑफ कॉइन एज जेन्युइन विच व्हेन फर्स्ट प्रोसेस द डिलीवरर डिड नॉट नो टू बी काउंटरफीट। सो 241 का मार्जिनल हेडिंग काउंटरफीटिंग। एंड ओके, आई थिंक आज अभी हम इतना ही करेंगे। चैप्टर 14 के अलावा, चैप्टर 14 ऑनवर्ड्स वी विल डू टुमारो, बिकॉज टुडे यू हैव लॉट ऑफ सेक्शंस टू डू इट ऑन योर ओन। आई जस्ट गिव यू अ सिंपल ट्रिक कि आप आज आप कैसे इन सारे चैप्टर्स को कंप्लीट कर सकते हो बेटा। सो इसको आप कैसे करेंगे? चैप्टर 4 तक तो आई थिंक आपको 76 to 106 तो अच्छे से याद हो जाना चाहिए अभी तक। अबेटमेंट का भी आपने सिंपली एक पेपर ले लो, या फिर अपनी बेरेक्ट के अंदर ही एक स्टिकी नोट, यू कैन हैव वन पेपर, प्लीज सिट टुनाइट बिफोर यू कम फॉर टुमारोज क्लास। अबेटमेंट के लिए भी आप एक सिंपल चार्ट बना लो, जैसे मैंने आपको बताया था, यहाँ डिफाइंड बेटर, यहाँ डिफाइंड अबेटमेंट, और फिर पनिशमेंट्स का आप एक चार्ट बना लीजिए जो आपको डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरीज के, जो आपको अबेटमेंट मैंने आपको बताया, अबेटेड एक्ट कमिटेड, नॉट कमिटेड, डन विद डिफरेंट इंटेंशंस, उसको आप उस तरीके से जो है पूरा चैप्टर 5 को आप कवर कर लो। चैप्टर 5A कॉन्स्पिरेसी इज सिंपल, वहां पे आपने 120A करना है। अब अगर हम चैप्टर 8 से बात करें, चैप्टर 8 नो, चैप्टर 5A पहुंचे ना, चैप्टर 6 7 यू कैन स्किप, 7 स्किप कर देना। चैप्टर 6 चैप्टर 8 के आपको नोट्स बनाने हैं। चैप्टर 7 यू कैन स्किप, चैप्टर 6 चैप्टर 8 आपने बनाना है। ठीक है, एंड चैप्टर 9 टू चैप्टर 4, चैप्टर 13, इसमें मैं आपको बताऊंगी क्या करना है। चैप्टर 6 जो है, इट इज टॉकिंग अबाउट ऑफेंसेस अगेंस्ट स्टेट। इसमें जो आपके सबसे इंपॉर्टेंट है, जैसे मैंने आपको बताया सेडिशन, जैसे मैंने आपको बताया वेजिंग वॉर अगेंस्ट द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, तो यहाँ पे 1 and 2 मोस्ट इंपॉर्टेंट, बाकी के आप सिंपल रीडिंग दे दीजिए। सिमिलरली चैप्टर 8 के अंदर मैंने आपको बताया ऑफेंसेस अगेंस्ट पब्लिक ट्रैंक्विलिटी, तो उसमें जो आपके सबसे इंपॉर्टेंट है 1 2 3 4, उन 4 को आप एक स्टिकी नोट में लिख लीजिए, और उन 4 ऑफेंसेस के जो आपके इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स हैं उनको अच्छे से लिख लीजिए। बाकी जो है एक फेयर रीडिंग दे दीजिए। आर यू अंडरस्टैंडिंग? Then if I talk about chapter 9 to chapter 13 also, जैसे मैंने आपको बताया कि इसके भी आपने सिर्फ एक फेयर सेम प्रोसेस यू गोइंग टू फॉलो इन दीज चैप्टर्स ऑल्सो, चैप्टर 9 टू चैप्टर 13 ऑल्सो, दैट यहाँ पे भी आपने जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो आपने सिर्फ ऐसे मार्क कर लो, बाकी का सिर्फ एक फेयर रीडिंग दे दो। जैसे काउंटर फीटिंग ऑफ कॉइन हो गया, वो आपको यू शुड रिमेंबर द सेक्शन कि ठीक है, काउंटर फीटिंग ऑफ कॉइन इज हियर। देन हार्बरिंग ऑफ ऑफेंडर्स इज हियर, harboring of an offender, harboring of people who have committed theft,
उस तरीके से जो आपके इंपॉर्टेंट सेक्शंस हैं उनको आप जो है एक लिस्ट बना सकते हैं, बाकी का सिर्फ जो है एक फेयर रीडिंग दे दो. Is everybody understanding how you have to go about with these 13 chapters? And from 14 onwards, we will go ahead tomorrow. Is it clear? Yes, ma'am. Yes? Okay, thank you for responding. Yes? Okay, thank you so much. And today we have